नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पूरे बीदर जिले में स्कूल, कॉलेज, आंगनबाड़ी केंद्रों को छुट्टी घोषित करने का आदेश। जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने दिए निर्देश। राज्य के स्पोर्ट्स मिनिस्टर बी नागेंद्र आज बीदर के दौरे पर पहुंचे। विधायकों में असंतोष की अटकलों के बीच कर्नाटक कांग्रेस 27 जुलाई को विधायक दल की बैठक करेगी। एचडी देवेगौड़ा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि अतिरिक्त एनआईसी भूमि वापस ले। कर्नाटक में जुलाई तक डेंगू के 4000 से अधिक मामले दर्ज। भारतीय सेना को हमेशा अलर्ट रहना होगा, कारगिल की जंग ने यही सिखाया, बोले पूर्व थल सेना प्रमुख वीपी मलिक। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर जिले में लगातार बारिश और 27 जुलाई को 100 से 150 mm बारिश के पूर्वानुमान के कारण मौसम विभाग ने एहतियात के तौर पर छात्रों, सभी स्कूलों के हित में बीदर जिले में लगातार हो रही बारिश और 27 जुलाई को 100 से 150 mm बारिश के पूर्वानुमान के कारण मौसम विभाग ने एहतियाती के तौर पर छात्रों और सभी स्कूलों के हित में बीदर जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। बीदर जिले के कॉलेज और आंगनबाड़ियां 27 जुलाई को बंद रहेंगी। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष और जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने केंद्रों को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34M के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और छुट्टी घोषित करने का आदेश दिया है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। राज्य के खेल मंत्री बी नागेंद्र आज बीदर के दौरे पर पहुंचे। वह पहले बीदर शहर में स्थित नेहरू स्टेडियम का दौरा करने के बाद जिला पंचायत कार्यालय में विभागीय अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की। इस मौके पर मंच पर विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार अरली, चंद्रशेखर पाटिल मौजूद रहे। इस मौके पर पूर्व विधान परिषद सदस्य विजय सिंह मौजूद रहे। बैठक के बाद उन्होंने मंत्री बी नागेंद्र का सम्मान किया। बैठक में सभी अधिकारी आदि उपस्थित रहे। उसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बात की। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। ಮೂಲಕ ನಾನು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರುವಂಥ ಜಿಲ್ಲೆ ಇದೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಂಥವ್ರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಉತ್ತೇಜನ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡೋದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಕಳೆದ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ. ನಾನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ನಮಗೆ ಇಲಾಖೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕಂತೇಳಿ ಬೀದರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು, ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಬರ್ತಾವೋ ಆ ಕ್ರೀಡೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರೀಡೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆ ಯಾವತ್ತೂ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದು ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನ ಇದೆ, ಕ್ರೀಡೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವು ಕ್ರೀಡೆಗೆ ನಾವು ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರನ್ನ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕಂತೇಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆ ರೀಸನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಬೆಳಗಾಮಲ್ಲಿ ಕುಸ್ತಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂದರೆ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ ನಾವು ಭಾಳ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಾವಂತರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎರಡನೇದು, ತಾವು ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಇವತ್ತೇನು ಈ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ನಾನು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತನಿಖೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಹಣ ಏನಾದರೂ ದುರುಪಯೋಗ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೂಡ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಕೂಡ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ತನಿಖೆ ಮೂಲಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಲೋಪದೋಷ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ನಮಗಿನ್ನೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು.
ನಾವು ಇವತ್ತು ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗಿದೆ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ. राज्य सरकार की गारंटी योजनाओं में इससे एक गृहलक्ष्मी योजना ने 20 जुलाई से पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है और योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के तहत नगर सभा के तहत 5 केंद्र स्थापित किए गए हैं। पंजीकरण केंद्रों का विवरण वार्ड संख्या 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 17 की जनता पुराने बस स्टैंड के सामने नगर सभा कार्यालय में पंजीकरण करा सकती है। वार्ड संख्या 14, 15, 16, 18 और 19 जनता शहरी विकास प्राधिकरण कार्यालय मेन रोड नौबाद बीदर में पंजीकरण करा सकती है। वार्ड संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 की जनता उस्मानगंज स्वास्थ्य निरीक्षक कार्यालय में पंजीकरण करा सकती है। वार्ड संख्या 29, 30, 31, 32, 33, 34 और 35 जनता सीएमसी स्कूल मंगलपेट कमान के पास पंजीकरण करा सकती है। वार्ड संख्या 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 में जनता गांधीगंज स्वास्थ्य निरीक्षक कार्यालय में पंजीकरण करा सकती है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं समाचार राज्य के। कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के लगभग 30 विधायकों के एक समूह द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विधायक दल की बैठक बुलाने का आग्रह करने के बाद नेतृत्व ने 27 जुलाई गुरुवार को सीएलपी बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया है। कांग्रेस अधिकारियों के मुताबिक पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहेंगी। कांग्रेस पार्टी जिन समस्याओं का सामना कर रही है उनमें से एक समस्या उसके विधायकों की है जो अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लिए विकास निधि की मांग कर रहे हैं। हालांकि 5 गारंटियों के रूप में पार्टी के लगभग 50,000 करोड़ रुपए के चुनावी वादों के कार्यान्वयन के कारण धन में कटौती का सामना करना पड़ा है। मुफ्त बिजली, 10 किलो चावल, परिवार की महिला मुखिया के लिए 2,000 रूपये, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा और हाल ही में बेरोजगार स्नातकों के लिए 3,000 रूपये का भत्ता। मंगलवार को पार्टी विधायकों के बीच असंतोष की अटकलों को खारिज करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा, हमने कुछ समय से विधायक दल की बैठक नहीं बुलाई थी। हमने 19 जुलाई को बुलाया था जिसमें राहुल गांधी को शामिल होना था, लेकिन इसे केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी की मृत्यु के बाद स्थगित कर दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने राज्य सरकार से बेंगलुरु मैसूर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर बीएमआईसी परियोजना के लिए एनआईसी को दी गई अतिरिक्त जमीन वापस लेने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया नैतिकता की बात करते हैं। 11,660 एकड़ अतिरिक्त जमीन वापस लेने में क्या दिक्कत है? प्रत्येक एकड़ की लागत लगभग 5 से 10 करोड़ रुपए है। वे इस पैसे का इस्तेमाल अपनी 5 गारंटियों के लिए कर सकते हैं। पूर्व पीएम ने संवाददाताओं से कहा, नैतिकता के बारे में उपदेश देने के बजाय सीएम को इस पर कड़ा रुख अपनाना चाहिए। गौड़ा ने कहा कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री टीबी जयचंद्र जो एक हाउस कमेटी के प्रमुख थे, उन्होंने परियोजना में कथित अनियमितताओं के खिलाफ कार्यवाही की सिफारिश करते हुए एक रिपोर्ट दी थी। गौड़ा ने कहा, 20 जुलाई 2023 को जयचंद्र ने विधानसभा में बोलते हुए सरकार से कथित अनियमितताओं के कारण परियोजना को वापस लेने के लिए कहा। कर्नाटक में इस साल 19 जुलाई तक डेंगू के 4,013 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 2022 में इसी अवधि में 3,403 मामले थे। इस साल कुल मामलों में से 2,065 मामले बेंगलुरु में हैं। बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार इस साल 19 जुलाई तक डेंगू के 825 मामले दर्ज किए गए हैं। जून में शहर में डेंगू के 689 मामले सामने आए। जनवरी से 19 जुलाई की अवधि में बेंगलुरु पूर्व में 669 मामले दर्ज किए गए। इसके बाद महादेवपुरा क्षेत्र में 421 मामले दर्ज किए गए। इसी तरह बोमनहल्ली, दशरहल्ली, आरआर नगर, बेंगलुरु दक्षिण, बेंगलुरु पश्चिम और यलहंका जोन में क्रमशः 135, 28, 99, 356, 222 और 125 मामले दर्ज किए गए। हम प्रतिदिन डेंगू के 8 से 10 और मलेरिया के 1 से 2 मामले देख रहे हैं। उन्होंने कहा, डेंगू और मलेरिया संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलता है। डेंगू के मामले में एडीज एजिप्टिस और मलेरिया के मामले में एनोफिलीज और दोनों ही बीमारियां गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा करती हैं। कारगिल दिवस के मौके पर बीजापुर शहर में विजय उत्सव मनाया गया। इस मौके पर शहर में रहे सैनिक स्कूल में कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। शहीदों को याद किया गया, साथ ही युद्ध में उनके बलिदान को याद किया गया। बीजापुर से फेरोज शेख। जय हिंद। ಇವತ್ತಿನ 24ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯೋತ್ಸವವನ್ನು
ಬಿಜಾಪುರದ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಘ ಮತ್ತು ವಿಜಯವಾಣಿ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇವತ್ತು ಮುಂಜಾನೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಸೈನಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ದಲ್ಲಿ ವಾರ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಹುತಾತ್ಮರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಕಲ್ಗಲ್ ಹನುಮಂತರಾಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳಾದ ಬಸವಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಹಾಗಳು ಅವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ಮಾನ್ಯಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲೂ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ ಈ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ಬಿಜಾಪುರದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರು ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಗೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್. रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं आगे के समाचार। कारगिल विजय दिवस पर भारतीय थल सेना के पूर्व प्रमुख जनरल वीपी मलिक ने कहा कि पाकिस्तान हो या चीन, ये कितने भी मित्रता दिखाएं, हमें भारतीय सशस्त्र बलों को हर समय अलर्ट रहना होगा। कारगिल युद्ध ने यही सिखाया है। कारगिल विजय दिवस समारोह पर भारतीय सेना 2 दिवसीय कार्यक्रम में हिस्सा लेने आई पूर्व थल सेना अध्यक्ष वीपी मलिक ने आगे कहा कि हमारे देश की सेना पहले से सशक्त हो गई है। कारगिल की सीमा पर बहुत विकास हुआ है। जनरल वीपी मलिक ने आगे कहा कि कारगिल का युद्ध सबसे चुनौतीपूर्ण इलाके में कठोर मौसम की स्थिति में लड़ा गया था।
मैं उन लोगों के परिजनों के बीच बहुत सम्मानित महसूस करता हूं, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान, अपना जीवन बलिदान कर दिया। पूर्व थल सेनाध्यक्ष वीपी मलिक ने कहा कि 24 साल में हमारे देश की सेना आत्मनिर्भर बनी है। जवानों के बातचीत के साधन भी हाईटेक हो गए हैं। सीमा तक सेना को पहुंचने में ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। पश्चिम बंगाल में हुए पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा को लेकर बनाई गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है। यह कमेटी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बनाई थी। कमेटी में बीजेपी के लोकसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को कन्वेनर बनाया गया था, जबकि सांसद सत्यपाल सिंह, रेखा वर्मा, ब्रजलाल और राजदीप रॉय इसके सदस्य थे। बता दें कि सत्यपाल सिंह और ब्रजपाल पुलिस के शीर्ष और जाने माने अफसरों में शुमार रहे हैं। बंगाल के हालात पर बात करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा, हम लोगों ने बंगाल में करीब 2000 किलोमीटर का दौरा किया। ममता बनर्जी की सरकार में हमने विकृत लोकतंत्र देखा। हमें राज्य में कई जगह रोका गया। हमारी रिपोर्ट के 5 मूल बिंदु हैं। पहला, नॉमिनेशन नहीं करने देंगे। दूसरा, नॉमिनेशन कर लिया तो प्रचार नहीं करने देंगे। तीसरा, अगर प्रचार किया तो आपके लोगों को किडनैप कर लेंगे। चौथा, आपके ऊपर बम फेंकेंगे। और पांचवा, अगर जीत गए तो आपको सर्टिफिकेट नहीं देंगे। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हम उन लोगों से मिले जिन्हें बुरी तरह से पीटा गया था और उन लोगों से मिलना पीड़ादायक था। केंद्र सरकार ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय ईडी के प्रमुख संजय कुमार मिश्रा के कार्यालय को बढ़ाने की मांग करते हुए एक ताजा आवेदन के साथ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति गवई की अध्यक्षता वाली पीठ से अपने फैसले के संबंध में दायर एक आवेदन पर सुनवाई करने का आग्रह किया। मेहता ने अदालत में बताया कि मैं एक विविध आवेदन प्रसारित कर रहा हूं। हम कुछ प्रार्थना कर रहे हैं, जिसके लिए आपको शुक्रवार से पहले इस पक्ष पर राजी करना होगा। केंद्र ने ईडी चीफ का कार्यकाल बढ़ाने की मांग की। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में एफएटीएफ की चल रही समीक्षा के मद्देनजर प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 15 अक्टूबर तक बढ़ाने की मांग की है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से एफएटीएफ की चल रही समीक्षा के मद्देनजर ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने का आग्रह किया है, जो एक महत्वपूर्ण चरण में है, जहां प्रभावशीलता पर 21 जुलाई 2023 को प्रस्तुतियां दी गई हैं और नवंबर 2023 में एक ऑन साइट दौरा आयोजित किया जाना है। गुरुवार को याचिका पर होगी सुनवाई। आज संसद में विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष की ये नई रणनीति है, क्योंकि विपक्ष हर हालात में ये चाहता है कि मोदी संसद में बोले और इसी के लिए विपक्ष हर पैंतरा आजमा रहा है। विपक्ष की हार तय है, फिर भी जिद पर अड़ा हुआ है। आखिर क्यों विपक्ष चाहता है कि किसी भी सूरत में मोदी को संसद में बोलने पर मजबूर किया जाए? अगर हार तय है तो फिर भी विपक्ष क्यों ला रहा है अविश्वास प्रस्ताव? ये हम आपको समझाते हैं। ये बात हर किसी के मन में है कि जब विपक्ष के पास ये प्रस्ताव पास कराने लायक आंकड़ा ही नहीं है, तो विपक्ष क्यों नो कॉन्फिडेंस मोशन पर अड़ा हुआ है? दरअसल ये प्रस्ताव विपक्ष की नई रणनीति का हिस्सा है। विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव के बहाने पीएम मोदी को घेरना चाहता है। विपक्ष चाहता था कि मणिपुर में जारी हिंसा पर पीएम मोदी संसद में बयान दे, लेकिन सरकार का कहना है कि ये जवाब गृह मंत्री अमित शाह देंगे। इसके बाद विपक्ष अब ये प्रस्ताव लेकर आया है, जिससे कि पीएम मोदी को संसद में बोलने के लिए मजबूर किया जा सके। अविश्वास प्रस्ताव के पीछे विपक्ष की असल रणनीति मणिपुर हिंसा पर लोकसभा में विस्तृत चर्चा चाहता है। विपक्ष चाहता है कि मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री संसद में जवाब दे। चर्चा के दौरान विपक्ष को बोलने का भरपूर मौका भी मिलेगा। मोदी सरकार पर प्रेशर बनाने का सबसे कारगर तरीका इंडिया गठबंधन के बाद यह विपक्षी एकजुटता का लिटमस टेस्ट है। अब देखते हैं समाचार विदेश के। मणिपुर में पिछले दिनों 2 महिलाओं को नग्न करके उन्हें घुमाने के मामले ने अब तुल पकड़ लिया है। संसद में इसी बात को लेकर कई दिनों से जोरदार हंगामा चल रहा है। अब स्थिति भारत सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तक पहुंच चुकी है। वहीं अब अमेरिका ने भी मणिपुर मामले पर पहली बार भारत को लेकर कुछ टिप्पणी की है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने कहा कि मणिपुर में 2 महिलाओं पर हमले के वीडियो से अमेरिका स्तब्ध एवं परेशान है और उनका देश न्याय दिलाने के भारत सरकार के प्रयासों का समर्थन करता है। मणिपुर के कांगपोकपी जिले में 2 महिलाओं को भीड़ द्वारा निर्वस्त्र कर उन्हें घुमाए जाने का वीडियो 19 जुलाई को सामने आया था, जिसकी पूरे देश में निंदा की गई। यह घटना 4 मई की है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के उपप्रवक्ता वेदांत पटेल ने मंगलवार को अपने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में कहा, हम मणिपुर में 2 महिलाओं पर नृशंस हमले के वीडियो से स्तब्ध हैं और यह वीडियो परेशान करने वाला है।
हमलिंग आधारित हिंसा के इस कृत्य की शिकार महिलाओं के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हैं और उन्हें न्याय दिलाने के भारत सरकार के प्रयासों का समर्थन करते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग को 1.5 साल होने को आ चुका है, लेकिन जंग है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि ये जंग अब एक तरफा नहीं रह गया है। यूक्रेन भी अब पलटवार कर रहा है। मॉस्को में ड्रोन अटैक और रूस की सीमा पर यूक्रेन के हमले की गतिविधियां बढ़ गई हैं। इसके पीछे नाटो देशों का सपोर्ट खास है। इसी बीच बड़ी खबर सामने आई है कि रूस ने यूक्रेन के ऐतिहासिक स्थल पर बड़ा हमला कर दिया है। ऐतिहासिक कैथेड्रल पर ताबड़तोड़ रूसी बमबारी के कारण स्थानीय लोगों में रूस के खिलाफ आक्रोश बढ़ गया है कि हाथ उस समय कांप उठे जब वह रूसी बमबारी में क्षतिग्रस्त हुए ओडेसा के ऐतिहासिक कैथेड्रल का वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और उनके मुंह से अपने मूल स्थान रूस के लिए केवल बद्दुआएं निकली। ख्लापोवा का पालन पोषण यूक्रेन में हुआ और उनका हमेशा से समुद्र के किनारे बसे शहर में निवास करने का सपना था और उन्होंने कभी युद्ध शरणार्थी बनने का नहीं सोचा था। महज एक सप्ताह के भीतर रूस ने ओडेसा इलाके में दर्जनों मिसाइलें दागी हैं, जिनमें से एक ने ऐतिहासिक और यूक्रेन एवं रूस की संस्कृति के प्रतीक कैथेड्रल को क्षतिग्रस्त कर दिया है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, आलिया और रणबीर ने जीती महफिल, फैंस ने किया दीपिका को मिस। अब समाचार खेल जगत के। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। पाकिस्तान के खिलाड़ी ने जड़ा दोहरा शतक, बना दिया बड़ा खास रिकॉर्ड। आखिर में समाचार बाजार के। हाल ही में कंपनी के नाम में बदलाव किया गया था। ट्विटर को एक्स नाम दिया गया, जो कंपनी के मालिक एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स से मिलता है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। पूरे बीदर जिले में स्कूल, कॉलेज, आंगनबाड़ी केंद्रों को छुट्टी घोषित करने का आदेश। जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने दिए निर्देश। राज्य के स्पोर्ट्स मिनिस्टर बी नागेंद्र आज बीदर के दौरे पर पहुंचे। विधायकों में असंतोष की अटकलों के बीच कर्नाटक कांग्रेस 27 जुलाई को विधायक दल की बैठक करेगी। एचडी देवेगौड़ा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि अतिरिक्त एनआईसी भूमि वापस ले। कर्नाटक में जुलाई तक डेंगू के 4000 से अधिक मामले दर्ज। भारतीय सेना को हमेशा अलर्ट रहना होगा, कारगिल की जंग ने यही सिखाया, बोले पूर्व थल सेना प्रमुख वीपी मलिक। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।